Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 11th history chapter Industrial Revolution. I hope this chapter 9 is very important for you, for your class. In the previous class, we had studied about the changes which was occurring in the European society during 18th and 19th century. Why these type of changes introduced in Britain first time? This point also discussed by me in your previous class. Dear friends, it is very strange matter and Britain was fortunate that the facilities that promote as a industrial center, London was very famous because during 50 years Britain became the center of the triangular trade. London, that was the center place for the banks. And I mean to say that in the industrialization, the raw materials play very important role. The capitalism play important role. Cheap labor also important role and technologies. These all were available in London during that time. And one other changes that was the agricultural revolutions. It happened in Britain also. It is very strange matter about the agricultural revolution. My dear, in my study class, I was discuss about that what is the meaning of industrial revolution and what is the meaning of agricultural revolution also. Agricultural revolution is totally different from the Indian agricultural revolution. Where we are saying agricultural revolutions, in your mind, one word that had come, that will come, that कि कृषि की खूब उन्नति हुई होगी, उत्पादन बढ़ा होगा और लोग समृद्ध हो गए होंगे. I mean to say that the huge amount of the production that changed the life of the peasant or peasantry class people. But no, just opposite, it happened in Britain. The peasant, they sold their land in the hand of the big land own, I mean to say big इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े उद्योगपतियों के हाथों में अपनी जमीन बेच करके ये लोग दे माइग्रेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया. That is called agricultural revolution in Britain. Today, we will try to understand the coal and iron because in my last class, I was also informed you, I was also taught you that during 18th century, the 26,000 inventions happened in Britain. And in 26,000, more than half, it was happened during 1782 to 1800. My dear, how these inventions changed the life of, changed the economic condition of the Britain. If we will focus the 4 points, you can easily understand the key point of the industrial revolution in Britain. 4 चीज़ों पे हमने बात की थी. कहा था मैंने कि आप वहाँ पे बड़े बड़े जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो कोल एंड आयरन का यूज हो रहा है, जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं और जो कैपिटल वहाँ पे अवेलेबल है, स्टीम एंड इंजन्स की जो मैंने बात की, इन चीज़ों पे यदि आप देखें तो यू कैन इजली अंडरस्टैंड, आप आसानी से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को समझ सकते हैं. आज हम लोग टॉपिक कोल एंड आयरन को समझेंगे. कोल एंड आयरन. द इंग्लैंड वाज फॉर्चुनेट इन दैट कोल एंड आयरन ओर द स्टेपल मटेरियल्स फॉर मैकेनाइजेशन were plentifully available, as were other minerals, lead, copper, and tin. My dear, in my last class, I was discussing this topic coal and iron, where I informed you that London was very much fortunate that these both coal and iron, in the huge amount it was available in the coastal regions. I was also discussing about that the role of Abraham family, Abraham first, Abraham Derby first, 1767 to 1771,
Abraham Darby second, 1711 to 68, and thereafter Abraham Darby third. Their role in the development of iron industry very important. They try to made the various equipment with the help of the iron. These points also discussed by me in your previous class. Today we will try to read the next point, cotton spinning and weaving. हमने कल लोहे पे विस्तार से चर्चा की और हमने लोहे पे बात करते हुए कहा था किस तरीके से अब्राहम डर्बी जो प्रथम अब्राहम डर्बी थे 1677 टू 1777 के बीच ब्लास्ट फर्नेस का आविष्कार किए। फिर मैंने सेकेंड अब्राहम डर्बी की बात की 711 टू 68, रॉट आयरन की उन्होंने खोज की। और थर्ड मैंने बात की थी थर्ड डर्बी की 1750 टू 91, इन्होंने पहला लोहे का पुल बना दिया। तो लोहे से संबंधित चीज़ों में एक नया बदलाव लाना, एक नई चीज़ों को एक नए स्वरूप में लाने का काम डर्बी फैमिली ने किया। इन चीज़ों पर विस्तार से चर्चा हमने कल की क्लास में की थी। आज हम लोग इस चैप्टर के कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग पॉइंट्स को समझने का प्रयास करेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। कॉटन, ब्रिटिश हमेशा ऊन और सन से कपड़ा बुनते थे। 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड भारत से बड़ी लागत पर अधिक पैसे देकर सूती कपड़े की गांठों को आयात करता था, एक्सपोर्ट करता था। मतलब इंडिया से एक्सपोर्ट होते थे, लंदन इंपोर्ट करता था, लंदन बड़ी मात्रा में सूती कपड़ों को अपने यहाँ मंगाता था। लेकिन जब भारत के हिस्सों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हो गया, तब इंग्लैंड ने कपड़ों के साथ साथ कच्चे कपास का आयात, कच्चे कॉटन का इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले वो इंडिया से बने बनाए कपड़े लेता था, अब वो इंडिया से रॉ कॉटन लेने लगा, विच कुड बी स्पून एंड वुवेन इनटू क्लॉथ इन इंग्लैंड। और वो कपड़े अब मशीनों के द्वारा इंग्लैंड में बुने जाने लगे। माय डियर, इन चीज़ों के आधार पर मैंने आपसे ये बात कहने का प्रयास किया कि अब लंदन कॉटन इंडस्ट्री के सेंटर के रूप में अपने को दिखाने का प्रयास कर रहा है। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में कताई का काम इतनी धीमी गति और मेहनत से किया जाता था कि एक बुनकर को व्यस्त रखने के लिए, एक बुनकर के लिए जो धागे की जरूरत थी, उसको 10 लोग अगर धागा काटे तो एक बुनकर उनसे कपड़ा बना सकता था। कहने का तात्पर्य यह है कि एक बुनकर को व्यस्त रखने के लिए, आवश्यक धागा काटने के लिए 10 काटने वालों की जरूरत पड़ती थी। और ये काटने वाले अधिकतर स्त्रियां होती थी। स्पिनर, जिनसे अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त शब्द स्पिंटर बना है, की जरूरत पड़ती थी। इसलिए काटने वाले दिन भर कताई के काम में लगे रहते थे और बुनकर बुनाई के लिए धागे के इंतजार में समय बर्बाद करते रहते थे। तो ये जो चीजें हैं एक लंबी प्रोसेस में चलती रहती थी, लेकिन टेक्नोलॉजिकल चेंज के द्वारा नए नए इन्वेंशन की खोज हो जाने के बाद जो रॉ कॉटन है उसकी कताई और धागा बनाने का काम तेज गति से होने लगा। अब मशीनों के द्वारा कुशलतापूर्वक न केवल धागे ही जल्दी बन रहे थे, बल्कि कपड़ों की बुनाई भी तेज हो गई। साथ ही साथ महीन कपड़े बुने जाने लगे। ये महीन कपड़े मार्केट में इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी। माय डियर, the British had always woven cloth out of the wool and flax. Let us come and try to understand what the author want to inform you. What I narrate you, what was discussed by me, when you will read the line, you can easily understand that that is the actual meaning of that paragraph. The British had always been woven cloth out of the wool and flax
to make linen. From the 17th century, the country had been importing bales of cotton cloth from India at great cost. As the East India Company politically controlled a part of India was established, it began to import, along with cloth, raw cotton, which could be spun and woven into cloth in England. Till the early 18th century, spinning had been so slow and laborious that 10 spinners, mostly women, hence the word spinner, were required to supply sufficient yarn to keep a single weaver busy. Therefore, while spinners were occupied all day, weavers waited idly the receive yarn. But a series of technological innovation successfully closed the gap between the speed in spinning raw cotton into yarn or thread and of weaving the yarn into fabric. To make it even more the efficient production gradually shifted from the homes of spinners and weavers to factories. मैंने आपसे कहा कि किस तरह से जो स्पिनर शब्द है स्प्रिंटर से बना, महिलाएं इसमें ज़्यादा काम करती थीं। एक कपड़ा बुनने वाले वीवर्स के लिए 10 लोग के द्वारा बुने गए यर्न की जरूरत पड़ती थी, धागे की जरूरत पड़ती थी, और ये काम बड़ा ही परिश्रम लेता था, बहुत मेहनत का काम था। लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी आई, प्रौद्योगिकी आई, नई नई मशीनों की खोज हुई, तो कहता है कि बट अ सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन सक्सेसफुली क्लोज द गैप बिटवीन द स्पीड इन स्पिनिंग रॉ कॉटन इनटू yarn or thread and of weaving the yarn into fabric to make it or more efficient production gradually shifted from home to spinners and wards to factory. और यहाँ से कपड़ा बुनने की रफ्तार तेज हुई और धीरे धीरे पहले का अंतर जो कपड़ा बुनने वाले और वर्कर्स के बीच था वो समाप्त हुआ। इस कार्य को और अधिक कुशलतापूर्वक करने के लिए उत्पादन का काम धीरे धीरे जो वीवर्स थे कताई घरों और बुनकरों के घरों से हटकर फैक्ट्रियों यानी कारखानों में चला गया। 70-80 की डिकेट्स में या 70-80 की डिकेट से ही कपास उद्योग कॉटन इंडस्ट्री के रूप में ब्रिटिश औद्योगिकरण का प्रतीक बन गया। इस उद्योग की 2 प्रमुख विशेषताएं थी जो अन्य उद्योगों में भी दिखाई देती है। कच्चे माल के रूप में आवश्यक कपास संपूर्ण रूप से आयात करना पड़ता था, और अब जब कपड़ा तैयार हो जाता उसका अधिकांश भाग बाहर निर्यात कर दिया जाता। निर्यात इट मीन्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आई थिंक आप आयात निर्यात को समझते होंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो सिस्टम थी, पहले ब्रिटेन बने बनाए कपड़े मंगाता था और अब ब्रिटेन अपने यहाँ कच्चा सामान मंगा करके कपड़ों का निर्माण करके वो अपने कॉलोनियल एम्पायर में भेजना शुरू किया, वो विदेशों में कपड़े भेजना शुरू कर दिया। तो यही कहता है कि अब इंग्लैंड के पास अपने उपनिवेशों में बने बनाए कपड़े भेजे जाने लगे। बाहर से वो कच्ची कपास मंगाता, रॉ कॉटन्स मंगाते, और फिर उसको लंदन में कपड़ा उसका बुनाया था और फिर वो विदेश बाहर के देशों में भेज दी जाती थी। फ्रॉम द 70s 80s the cotton 70-80s the cotton industry symbolized the British industrialization in many ways. This industry had 2 features which were also seen in other industries. Raw cotton had to be entirely imported and a large part of the finished cloth was exported. This sustained the process of colonization. This sustained the process of colonization. Okay, my dear, यहाँ पे अगर आप बुक में देखें तो आपके बुक में कई सारे पॉइंट्स हैं। द फ्लाइंग शटल लूम, द स्पिनिंग जेनी, म्यूल, व्हाट इज द
Flying shuttle loom. Flying shuttle loom, designed by John Kay in 1733, made it possible to weave broader fabrics in less time and consequently called for more yarn than could be supplied at the prevailing piece of spinning. ये फ्लाइंग शटल लूम क्या था? इसका आविष्कार जॉन के द्वारा 1733 में बनाए गए फ्लाइंग शटल लूम यानी कि उड़न तुरी करघे की सहायता से कम समय में अधिक चौड़ा कपड़ा बनाना संभव हो पाया। इसका रिजल्ट हुआ कताई का तत्कालीन रफ्तार से जितना धागा बनता था उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में धागा की जरूरत होने लगी। मतलब फ्लाइंग शटल लूम ने एक बार फिर अर्न की डिमांड बढ़ा दी, धागे की डिमांड बढ़ा दी। अब आइए स्पिनिंग जेनी। जेम्स हरग्रीव्स द्वारा 1765 में बनाई गई ये स्पिनिंग जेनी एक ऐसी मशीन थी जिस पर एक अकेला व्यक्ति एक साथ कई धागे काट सकता था। इससे बुनकर को उसकी सहायता से अधिक तेजी से धागा मिलने लगा। तो जेम्स हरग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी बनाई। फ्लाइंग शटल लूम का निर्माण जॉन के ने किया। और म्यूल क्या था? एक और वाटर फ्रेम, रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का निर्माण किया 1769 में। वाटर फ्रेम नाम की मशीन द्वारा पहले कहीं अधिक मजबूत धागा बनाया जाने लगा। इसे लिनन और सूती धागा दोनों को मिलाकर कपड़ा बनता। कपड़ा बनाने के बजाय अकेले सूती धागे से ही विशुद्ध सूती कपड़ा बनाया जाने लगा। पहले जो कपड़े बनते थे उसमें और अब जो कपड़े बन रहे हैं उसमें अंतर आने लगे धागों की बुनाई से। अब देखिए द स्पिनिंग जेनी कहता है was the machine made by James Hargreaves 1720 to 78 in 1765 on which a single person could spin the several threads of yarn simultaneously. This provided the weavers with yarn at a faster rate than they could weave into fabric. The water frame which Richard Arkwright invented in 1769 produced a much stronger threads than before. This also made it possible to weave pure cotton fabrics rather than fabric that combined linen and cotton. And the mule was the nickname for a machine invented in 1779 by Samuel Crompton. 1753 to 1827 that allowed the spinning of strong and fine yarn. Fifth, the cycle of invention in the cotton textile industry that sought to maintain a balance between the tasks of spinning and weaving conclude with the invention of the power loom by Edmund Cartwright in 1787. This essay to work stopped automatically every time a thread broke and could be used to weave any kind of materials. From the 1830s, the development in this industry concentrated on the increasing the productivity of workers rather than bringing new machine into use. कहता है कि अब म्यूल एक ऐसी मशीन है जिसको सैमुअल क्रॉम्पटन ने बनाई। इससे काता हुआ धागा बहुत मजबूत और बढ़िया होता था। कपड़ा उद्योग में इन मशीनों के आविष्कारों का दौर जो कताई तथा बुनाई के कार्यों के बीच संतुलन बनाने के लिए बनता रहा। एडमंड कार्टराइट द्वारा 1787 में पावर लूम यानी शक्ति चालित करघे के आविष्कार के साथ समाप्त हो गया। पावर लूम को चलाना बहुत आसान था। जब भी धागा टूटता वह अपने आप काम बंद कर देता और इससे किसी भी तरह धागे की बुनाई को धागे को फिर से बना करके फिर से ये क्रॉम्पटन की मशीन चल देती थी। 1830 के डिकेड से कपड़ा उद्योग में नई मशीनों की आ जाने के साथ साथ जो मानव श्रम था वो भी कम हुआ। लेकिन फिर 1830 की डिकेड से कपड़ा उद्योग में नई नई मशीनें बनाने की बजाय श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। अब वो मशीनों की जगह इन कपड़ों
जो ये कपड़े थे जो मशीनों से बन रहे थे उसकी जगह वो हाथ से बुने कपड़ों पे ज़्यादा बल देने लगे। ये कॉटन इंडस्ट्री जो थी, कहता है सो दैट द ब्रिटेन कुड रिटेन कंट्रोल over the sources, raw cotton, as well as the markets. The industry was heavily dependent on the workers of women and children in factories. This exemplified the ugly face of early industrialization, as will be described below. अब यह उद्योग प्रमुख रूप से कारखानों के रूप में काम करने वाली स्त्रियों तथा बच्चों पर बहुत ज़्यादा निर्भर था, और इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रारंभिक समय की एक बहुत ही घिनौनी तस्वीर सामने आती है, जिसके बारे में आगे विस्तार से बताया गया है। कहता है द इंडस्ट्री वॉज हैवीली डिपेंडेंट ऑन द वर्क ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज एंड दिस एक्सेम्प्लिफाइड द अगली फेस ऑफ अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन एज विल डिस्क्राइब। नीचे बताया गया है। अब आगे देखिए क्या कहता है, किन चीज़ों के बारे में बात करता है। जब हम स्टीम पावर को पढ़ेंगे, स्टीम पावर टॉपिक को, तब हम आसानी से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो स्टीम पावर पे हम बात करेंगे। तो स्टीम पावर पे जब हम चर्चा करेंगे तब देखेंगे कि किस तरीके से टाइम टू टाइम समय के अनुसार बदलाव हुआ। स्टीम पावर के आ जाने से मशीनों को चलाने के लिए शक्ति मिली, और ये स्टीम पावर किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन में अपना एज ए पावर के रूप में अपने को प्रूफ किया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय एंड टेक केयर।